Good afternoon, students. Today we will start present perfect continuous tense. Who is Munnara? Who is Munnaram here? Okay. Present perfect continuous tense. First of all, you will write formula. Okay. So, positive subject plus has have plus been plus what will we use in present perfect tense? Subject plus has have plus been plus which form will we use here? For first form plus ing plus what will we use here? Tell me, students. The voice is clear, coming to you or not? Object. Hello. Voice आ रही है? आ रही है? Yes, ma'am. Okay. Munnaram. Hello. What is your name? Yuvraj. Okay, Yuvraj. So, subject plus has have plus been plus verb first form plus ing plus object plus what will be used here? A special thing here in this tense. Since for. What time? Since for. Okay. Next, negative subject plus has a plus not plus verb first form plus ing plus object. नहीं, continuous keyword बोलेगा. पर present perfect continuous. समझ गए ना? नेगेटिव भी नहीं है Not just plus being plus verb first form plus ing plus object plus since for. Okay? In interrogative. Here is a plus subject plus being plus verb first form plus ing plus object plus causes plus question mark. If here will be WH type sentences, then WH word will be used, okay, before it, and same manner we will use it. Okay. So just as for example, I have been teaching English
since 1990. मान लीजिए हमने ऐसा लिखा 1990, तो क्या यूज किया हमने? since. और अगर हम इसके प्लेस पर 1990 की जगह पर 10 years लिखते तो क्या आता? 4. 10 years लिखते तो 4 आता. ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? since की जगह for. Clear to you? This is the difference between since and for. अभी हम आपको लिखवा देंगे. Since is used for the fixed time and for is used for a fixed period. Okay, this is the difference between that. अगर 10 month 10 year दिया हुआ है, 10 days दिया हुआ है, then we will use for. And if the time fixed time is given 4 o'clock or morning or evening, fixed time whenever we will be given, then we use always since. Okay, have you written this, all of you? May I run it? Okay. And after it you will write uses. यूजेस इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है. अब देखिए, हम आपको ये बात पता ही है ना कि भाई ये किसके लिए सिंस और फॉर का यूज बताऊं क्या? मैं लिखाऊंगा आपको सिंस For a fixed time. Fixed time. for a fix time, date, etc. है ना? और जबकि for For time. a fix period. जैसे 10, 7, etc. Okay. So now write down. It is used for an action or activity which began in the past and continuing at the time of speaking. देखिए क्या है, ये पास्ट में स्टार्ट हुई है और अभी तक चल रही है. ऐसी एक्टिविटी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, कैन यू गिव एनी एग्जांपल? जस्ट एज ही हैज बीन लिविंग इन जयपुर for 10 years. Okay, is it clear to you? So has been is used, has been living, and for 10 years. 10 years is used if there will be 1990, then what will be used? In the place of for हम क्या use करेंगे? Since. तो
ये तो है अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ गया? इट्स वेरी सिंपल। और देखिए सबसे कम लेस यूज्ड है ये, बहुत कम यूज किया में आता है ये। अच्छा, ऑलमोस्ट जो हमको एग्जाम में दिया जाता है, कॉम्पिटिटिव में भी दिया जाता है, उनमें से इसका यूज बहुत कम किया जाता है। ऑलमोस्ट किसका आता यूज होता है आपको ये भी बताना है। सबसे ज्यादा परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। ओके, और इनके सिंपल सेंटेंसेस नहीं देते हैं, इनके कनेक्टिव सेंटेंसेस देते हैं। ओके, क्योंकि अभी आपको कोई 10th बोर्ड नहीं देना है, अब आपको कंपटीशन देना है। ओके, और आपकी 12th में भी ग्रामर इंक्लूड कर दी गई, आपको खुशखबरी देना है हम। क्लॉजेस और सिंथेसिस अब 12th में भी आने लगे हैं, तो अभी तक नहीं थे। अभी तक इतना सिंपल पैटर्न था, अभी आपको क्लॉजेस और सिंथेसिस भी इसमें आपकी 11th में भी है और 12th में भी है। दैट्स व्हाई जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट हो वी विल स्टार्ट क्लॉजेस, है ना, जो कि क्लॉजेस आपके बोर्ड में भी आएंगे। दैट इज व्हाई इट शुड बी क्लियर टू यू। 2 टाइम्स आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह आ जाएगा सिंथेसिस और क्लॉजेस। ओके, ये तो सबसे सिंपल टॉपिक है। इस टॉपिक में तो आपको क्लैरिटी होगी आई थिंक। वैसे भी ये सिंपल टॉपिक है और इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। ओके, सो दैट्स व्हाई ये सबसे इजी है। इसमें आपको सब चीज क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। कुछ ऐसा तो नहीं है इसमें कुछ पूछने जैसा? हेलो, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग इन देयर नो मैम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आपको सिंपली पता ही है कि सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। अगर सिंस और फॉर का यूज किया गया हो सेंटेंस में, आपको जब फिलअप करने के लिए आएगा तो आप पहचान जाइएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। टाइमिंग्स दिया रहेगा, ठीक है, और सिंस और फॉर दिया रहेगा। उसमें ये सबसे आसान भी है पहचानने में। और उसके बाद में आप फिलअप कर लेंगे उसको। सिंगुलर है तो हैज बीन लगा देंगे और प्लूरल है तो हैव बीन। ओके, यस मैम। नेक्स्ट। तो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट पास्ट टेंस, है ना। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट भी है ये आपको ज्यादातर अब पास्ट टेंस जो है वो आपको एग्जाम्स में, कंपटीशंस में हर जगह मिलता है। पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। Past indefinite tense or past simple we may call. Formula past simple और past indefinite क्या होता है बताइए। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब की सेकंड। वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये लोग इन लोग को आता भी है कि नहीं पूछना पड़ेगा ना। वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ओके, subject plus verb second form plus object. Now negative. What we will use there in negative? Subject plus इसके बाद क्या आएगा? सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म। नो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, बट उससे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट के बाद क्या आता है राहुल? सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? डिड। हाँ, तो फिर भूल जाते हो क्या? डिड प्लस नॉट। अभी आपको कैसे पता चलेगा? अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे तो कौन सा टेंस हो जाएगा अपना? दूसरा टेंस हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी हेल्पिंग वर्ब उसमें भी चाहिए होते हैं। किसमें? प्रेजेंट में। उसमें डज और क्या आता है? डज और डू आता है। और इसमें डिड। डिड क्या है? सेकंड फॉर्म। आफ्टर इट नॉट प्लस कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की? फर्स्ट। यस, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव।
did plus subject plus verb first form plus object plus question mark. हाँ, एक चीज और इंक्लूड की गई है, वो है ट्रांसलेशन. इंग्लिश लिखा हुआ आएगा और उसको हिंदी में कन्वर्ट करना है. इट्स नॉट सो सिंपल. जब हार्ड वर्ड्स होते, अगर हिंदी होता और इंग्लिश में कन्वर्ट करने को होता तो इट्स इजी फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स. बट नाउ इट हैज बीन गिवन देयर. इट मीन्स पैराग्राफ विल बी गिवन देयर इन इंग्लिश एंड यू विल कन्वर्ट इट इनटू हिंदी. ओके, इंग्लिश की पेपर में भी हिंदी लिखनी पड़ेगी. पैराग्राफ चेंज करने को दे, अगर पैराग्राफ की आपको दिया जाएगा हिंदी लिखने को तो लिखना पड़ेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ सो हैव यू रिटन दिस? हैव यू रिटन दिस फॉर्मूलाज? ओके, Yes, ma'am. next WH word. Okay, WH word is used and after did. Okay, so now can you give any example of it? इनके sentences के example बता दीजिए. बताइए. Can you give any example of it? इतने स्टूडेंट्स बैठे हैं, इतने सालों से आप लोग टेंस पढ़ रहे हैं, आप बता सकते नहीं है क्या? कितना, कौन सा कोई एग्जांपल दीजिए. Yesterday I read chapter 2. हाँ, एक एक करके बोलिए. हाँ, डिम्पल बताइए. Yesterday I read chapter 2 of English. ओके, इंग्लिश का ही. Yesterday you are using in starting, है ना? Much perfect in the last. Much perfect in the last. Yesterday. क्या आपने क्या सेंटेंस बोला? Yesterday I read chapter 2. chapter 2 of English. of English. दो बुक है, कौन सा पढ़ा था? Okay. Anybody else can give example? Yesterday. Rohan didn't went to Goa tomorrow. Oh, tomorrow is not used here. Past tense. Can you give any other example? Rohan should be written here. After it include any example. Rohan went to Jaipur. went to Goa. He has used Goa, that is why we have used also. So Rohan went to Goa. Okay. So we will convert this into negative. Yes, Rahul, what will be the negative of this sentence? Did. Negative. Rohan हाँ. did not went Did not went to go go. to Goa. ये फर्स्ट फॉर्म. हाँ जी. क्योंकि did not के बाद बद की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए मैंने ये सेंटेंस कराया था कि went बोलोगे आप. So that is why Rohan did not go to Goa. Went का चेंज हो गया किसमें? बद की फर्स्ट फॉर्म में. Okay? Have you written this? Now write down the formula. May I rub it? Now write down uses. It is used for activity or event which
took place in the past and totally disconnect with the present. Totally disconnect with the present. देखिए इस तरह के सेंटेंसेस में क्या होता है कि उसका टोटली कोई कनेक्शन नहीं होता प्रेजेंट से, ठीक है, पूरी तरह से कट ऑफ हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। किससे? प्रेजेंट से पूरी तरीके से डिस्क्लोज हो जाता है मैटर। अब जैसे कि हमने कोई सेंटेंस, जैसे अभी आपने सेंटेंस लिखा था, रोहन went to Goa yesterday। मान लीजिए ये सेंटेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर went यूज किया है हमने, वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना, तो इसलिए पास्ट फॉर्म है। अभी ऐसे तो आएगा नहीं एग्जाम में, तो एग्जाम में क्या लिखा रहेगा? गो। अच्छा, yesterday से हम रिमाइंड कर लेंगे, लेकिन अगर yesterday नहीं लिखा है देन हमको कैसे रिमाइंड करना होगा कि हमें पास्ट एक्शन देना जिसका प्रेजेंट पर कोई इफेक्ट ना पड़े। अब यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर कंप्लीट हो गया, तो वो जाता है तो हो ही नहीं सकता ना, आपको रियल डे भी पता चल जाएगा, दिन ही पता चल जाएगा। डैश टू गोवा, अब गया, रोहन गोवा गया, ठीक है, यही है सिंपल सी बात। जाता है कोई एक डेली रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, तो हम गोज नहीं लिख सकते यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास दो ही ऑप्शन है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर? वेंट। क्लियर टू यू? क्लियर टू यू ऑल स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. ओके। अब देखिए इतना सिंपल आपको नहीं मिलने वाला कि आपको यस्टरडे लिखा हुआ मिल जाए और आप छोटे बच्चों की तरह उसको फिलअप कर लो, ऐसा कुछ भी चांस नहीं है। बहुत अच्छे से पढ़ाई करके आपको एग्जाम में कंपटीशन में देना होगा, और आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप आगे फाइट कर पाओगे कंपटीशन। ग्रामर का हर जगह रोल है, आपको 50% तो ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, 50 क्वेश्चन तो हर जगह आते हैं हर कंपटीशन में, तो दैट इज वाई आपको ग्रामर पोर्शन पर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। एक आपको पूरा पता चल गया कि भाई उसका प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं होता, पूरी तरह से कट ऑफ होता है, डिस्कनेक्ट होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखें, इट इज यूज्ड फॉर हैबिचुअल एक्टिविटी इन द पास्ट। In the past, okay, it is used for habitual activities in the past। जैसे कोई एग्जांपल, कैन यू गिव एन एग्जांपल?
इस वाले सेंटेंस के अंदर हमारे को करेक्ट, एक तो करेक्टिव वर्ड हमने यूज किया, क्लॉजेस है वही है एक तरीके से, है ना। उसको अभी आगे समझाएंगे हम आपको बाद में, लेकिन डाइवर्ट हो जाएंगे टॉपिक से, इसलिए आगे की चीज नहीं बता रहे। डायरेक्ट मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ केवल कि इसमें एक चीज आपको दिखाई दे रही है कि जब मैं 11 साल की थी तब मैं बहुत अच्छा डांस करती थी, ठीक है। तो ये चीज क्या है, हमारी पास्ट, ओके, क्या है, पास्ट हैबिट है ना। तो इस तरह की एक्टिविटीज जिसके अंदर हमारे को पास्ट रिप्रेजेंट करना हो, वहां पर हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना होता है, ओके। एनीथिंग एल्स, कैन यू गिव एनी अदर एग्जांपल? मैम वन क्वेश्चन। यस मैम डांस की सेकंड फॉर्म तो डांस ही होती है ना? नहीं, देखिए डांस, जैसे कि डांस जो है, एक दो वर्ड्स लिख रही हूँ मैं, देखो बच्चों, ये जो डांस है ना, एक तो नाउन के जैसे यूज होता है, ठीक है। अब जैसे कि हम सेंटेंस लिखते हैं, डांस वाज माय हॉबी, ठीक है। तो ये डांस जो है, ये क्या है, नाउन, समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर हमें इसको वर्ब में कन्वर्ट करना है तो हम इसमें पास्ट फॉर्म के लिए डांस लगा देंगे और ये वर्ब बन जाएगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है इसको प्रेजेंट करने का, ओके। तो ये जो डांस है ना, हमने यहाँ पर किसमें यूज किया है, एज अ वर्ब। क्लियर टू यू? यस मैम। डिम्पल, आपको क्लियर हो गया बच्चा? देखो इस तरीके से होता है। डांस जो है वो नाउन भी होता है और डांस जो है वो वर्ब में भी यूज। अभी तो आपके ये नहीं आते, सीबीएसई में पहले बच्चों को क्या आया करता था, एक वर्ड दे देते थे वो, और आपको हर तरीके से उसका यूज करने के लिए आता था कि आप कितनी तरीके से उसी वर्ड को आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं और सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो जैसे डांस दे दिया उन्होंने, अब आपको खुद उस डांस के 4 सेंटेंसेस बनाने होंगे, 4 तरीके से उसको यूज करना होगा। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। किसमें था, 12th में, ठीक है। तो दैट्स वाई अभी वो सब कुछ खत्म कर दिया है। हमारे टाइम में तो इतना मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि ग्रामर पोर्शन बहुत टिपिकल था हमारा, और पूरा 50 मार्क्स का ग्रामर आता था और 50 मार्क्स का लिटरेचर, अच्छा पेपर हुआ करता था। स्कूल से मार्क्स नहीं जाते थे। सो दैट्स वाई सेकंड थिंग, इज इट क्लियर टू यू? क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट पॉइंट। अब जैसे एक सेंटेंस और भी हो सकता है, he smoked daily when in Mumbai। अब देखो इन्होंने smoked daily ऐसे दिया है, smoked daily when he in Mumbai। अब या फिर ही लिखो तो भी एक सेंटेंस हमने पूरा अलग से बना दिया। बच्चों यहाँ पर ये जो एक सेंटेंस जो दिया गया है, इसके अंदर डेली वर्ड यूज किया गया है, ठीक है, क्योंकि ये हैबिचुअल फैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। अब दूसरी चीज, इन मुंबई, यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट वैन के बाद यूज कर दिया, क्योंकि सेंटेंस रॉन्ग नहीं है। अगर वैन ही वॉज इन मुंबई लिखते हो तो एक कंबाइंड सेंटेंस हो जाता आपका, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट किया इसको। सिंपल सेंटेंस है ये, ठीक है, क्योंकि अगर इसके बाद में हमने ही का यूज कर दिया और वाज का यूज कर लिया तो फिर क्या हो जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में से हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई द ऑथर यूज्ड हियर ओनली ही स्मोक्ड daily when in Mumbai, ओके। इट इज आल्सो करेक्ट। समझ आ गया बच्चों? यस। अब सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट सॉरी।
conditions and suppositions. कंडीशंस एंड सपोजिशंस क्या होता है? सपोजिशंस का मतलब होता है कल्पना, इमेजिनेशन ओनली. सपोज, मान लो कि ऐसा था, सो दैट इज ओनली इमेजिनेशन. सपोजिशन इट मींस इमेजिनेशन. एंड कंडीशंस, कंडीशंस कैसे? अब देखिए मैंने कंडीशनल सेंटेंस आपको अलग से पढ़ाया नहीं है, दैट इज वाई मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस अलग से पढ़ाना चाहती थी, इसलिए मैंने प्रेजेंट में भी यूज नहीं किया. तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अभी बता देती हूँ आपको कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे कंडीशंस के लिए यूज होते हैं. इसमें फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ओके, कंडीशनल सेंटेंसेस में, तो इस साइड में विल और शैल का यूज किया जाता है इफ क्लॉज के अंदर. इफ क्लॉज, कौन सा क्लॉज? इफ क्लॉज. ठीक है. अब वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस विल शैल, है ना. अब अगर इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो क्या आएगा? वुड, शुड और कुड. कैन बी यूज, ओके, कैन भी हो सकता है इसमें. ओके. अब अगर इसमें वर्ब थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म आता है, इफ क्लॉज तो चलेगा इस सब में, ओके. हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म आता है तो इसके सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या आएगा? वुड हैव, शुड हैव या फिर कुड हैव. नोट कर लीजिए, ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, ये आपके एग्जाम्स में भी आएंगे और वैसे भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए. हमेशा याद रखिएगा कि अगर इफ क्लॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो क्या आता है? फ्यूचर टेंस. ठीक है. विल और शैल और कैन बी यूज्ड आल्सो. वर्ब सेकंड फॉर्म में वुड, शुड और कुड आता है, ओके. एंड हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म अगर आती है तो वुड हैव, शुड हैव और कुड हैव यूज किया जाता है. ये कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए बताया जाता है. Have you written all of you? Yes, ma'am. कुछ जल्दी नहीं है, आराम से लिख लीजिएगा तब बताइएगा. डिम्पल, हैव यू रिटन? Yes, ma'am. Okay. Okay, all of you. तो जैसे कि अगर ये सेंटेंस है, मान लीजिए मैंने तो लिख ही दिया. ठीक है. अब इसमें ब्रैकेट में अपन को क्या मिला? फ्लाई. एक तो बी वर्ब आएगा बार बार में, एक तो बी वर्ब आएगा और दूसरा आएगा फ्लाई. ठीक है. तो क्या यूज करेंगे हम? बताइए क्या आएगा, किस तरीके से करेंगे मैम इसको? वो साफ कर देंगे. क्या आएगा? वाज. ओके, वाज लिख दिया. इफ आई वाज अ वर्ड, यहाँ पर क्या आएगा बताइए? हैं? जी. Fly. रॉन्ग बता रहे हैं आप, दोनों ही चीजें इनकरेक्ट हैं. देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखाया था. इफ क्लॉज है ये, तो क्या आएगा? इफ आई वर
वर क्यों आया? क्योंकि इमेजिनेटिव कंडीशन है। जब कोई बात सच नहीं हो सकती, ना तो हम पक्षी बन सकते हैं ना ही उड़ सकते हैं। ओके, सो दैट इज व्हाई इमेजिनरी कंडीशन ऑलवेज टेक वर इन द प्लेस ऑफ वाइज, सॉरी वाज। वाज की जगह जैसे आई वाज कब होता है? जब कोई कंफर्म चीज होती कि मैं ऐसा कर लूंगा। ओके, जब हम इस बात को कर ही नहीं सकते, केवल इमेजिनेटिव होता है, तो देन इमेजिनेटिव एक्शन के लिए हम आई के साथ वर यूज करते हैं। क्लियर? तो इफ आई वर अ बर्ड, आई फिर क्या लगा है? क्या यूज करें बेटा? वुड, शुड, कुड, क्या आएगा? Would. वुड। हाँ, कुड बोल रहे थे क्या? हाँ And would. हाँ, आई वुड फ्लाई। ओके, सही है, बिल्कुल करेक्ट है। आई वुड फ्लाई, क्योंकि हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किए हैं। क्यों यूज किए हैं? अगर आई की प्लेस पे अगर बी होता, अच्छा, अगर आई के प्लेस पर वी होता तो भी हम वर ही यूज करते, क्योंकि वी जो है वो ऑलरेडी प्लूरल है और उसके साथ हम वाज यूज कर ही नहीं सकते। नो ऑप्शन। ओके, एंड मैम अगर कोई सिंगुलर वर्ब होता, just for example, you may give example, any other example, then I will tell you. Okay, आप अगर लेके आएंगे कोई सेंटेंस तो मैं आपको जरूर आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूंगी। तो नाउ सी, अगर आपको कोई ऐसा सेंटेंस आता है देन यू मे आस्क। अभी तो आप ये देखिए, इफ आई वर अ वर्ड आई वुड फ्लाई अवे। वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही है, क्योंकि वो वुड जो है वो सेकंड फॉर्म है। ओके, नाउ व्हाट इज द टाइम? 54. Okay. Okay, thank you students. I want to close now. मैम हमें इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रश्न चाहिए। बेटा अभी तो बहुत टाइम हो चुका है ना?